Good afternoon, everyone. Shivani Sharma, your English teacher, once again in front of you with my new video on the second part of lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. We have already discussed this lesson in first part, and I think we have also introduced this lesson as that what is it about, किस बारे में है ये lesson. Right, Nelson Mandela, he became the first black president of South Africa after almost more than 300 years of white rule. White rule means अंग्रेजों का, गोरे लोगों का उनके पर राज, जहाँ पर अपार्थीड सिस्टम था. अपार्थीड सिस्टम क्या? अ सिस्टम वेयर द पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर ऑफ देयर स्किन, जिसको रेसिज्म बोलते हैं. राइट, एंड ही स्ट्रगल्ड for to achieve to get that freedom, not only for his own life, for a particular people, but for the whole, I mean the whole race of black people, and he became the first black president. And this lesson was about in the first part we have discussed his first speech, जब वो एक first president बना वहाँ का साउथ अफ्रीका का, जो उसने स्पीच दी. राइट, उस स्पीच की क्या इंपॉर्टेंस है, एंड व्हाट डज ही डिक्लेयर, व्हाट डिड ही डिक्लेयर एज अ प्रेसिडेंट. Right, he did not declare that they are going to take some kind of revenge. Right, they declared their opposition against apartheid system कि ये होना ही नहीं चाहिए. Right, they declared the birth of liberty, newborn liberty. They declared the birth of humanity, that now on the soil of, on the earth of South Africa, there will be no discrimination on the basis of any kind of racism or other things, caste, creed, color of skin, या फिर कोई और. Right, that was his pledge, that was his declaration, and it was a kind of a rainbow of gathering. ये वाली vocabulary में बार बार यूज करूंगी so that you become familiar with these new words. और मैंने उसमें पहली वीडियो में बताया था कि this lesson is full of very dignified kind of very good vocabulary. अच्छी vocabulary इसमें है, और अब जब आप लेसन करोगे 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो ज़रूर इसकी वोकेबलरी को करना है, डिक्शनरी का यूज़ ज़रूर करना है. तो रेनबो ऑफ गैदरिंग उसने किस लिए कहा था? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, राइट, वो अब खाली ब्लैक या वाइट नहीं बैठे थे वहाँ पर, खाली गोरे या काले नहीं थे. इट वॉज अ रेनबो, अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह से लोग आए थे. दे ऑल हैड कम टू पे देयर रिस्पेक्ट टू दैट वन पर्सन. राइट, वाई? बिकॉज ही हैड जस्ट sacrificed his around 30 years of his life just for this day. Right, not only he, but obviously he was accompanied by many more, but he became the first black president. और I think now you must be familiar with the apartheid system. इसके लिए मुझे बुक तो उठानी पड़ेगी. This chapter is very vast. और उसने क्या कहा था अपनी स्पीच में कि जिस जगह पर हमें आने का हक नहीं था, हमें मीन्स ब्लैक लोगों को, जिस जगह हम जा नहीं सकते थे, वी डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रिविलेज टू गो देयर, और उसी जगह पर दे वर होस्ट ऑफ सच अ वाइड वास्ट गैदरिंग. वहाँ वो उस जगह पर एम्पी थिएटर में वो होस्ट थे, वो पूरा फंक्शन खुद होस्ट कर रहे थे. तो इट इज़, अगर हम इस चीज़ को फील करें तो इट इज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग फॉर अस टू बी फ्री इन लाइफ, टू हैव लिबर्टी, टू हैव अवर राइट्स. It is such a great blessing in anyone's life, in any human's life. Or again same thing, this lesson has a very significant lesson for all of us. अगर हम blacks की sides पर देखें और अगर हम white की side से भी देखें, right? So he was saying, by our present confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long. He is talking of human disaster कि जो बहुत देर, बहुत लंबा समय चला कि काले लोगों को, ब्लैक लोगों को उनकी क्रूअल्टी का सामना करना पड़ा. उनकी जो उन्होंने उनको स्लेव्स की तरह रखा हुआ था. दे वर नॉट कंसिडर्ड इवन एज ह्यूमन बींग्स. राइट, और उसमें से born a society of which all humanity will be proud. लेकिन अब जो कहता है, ऑब्वियसली उस चीज़ की कोई हम प्राउड तो नहीं फील कर सकते. अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, अगर किसी को हम अपनी पावर की वजह से दबा के रख रहे हैं, चाहे हम हो, चाहे कोई देश हो, चाहे कोई सोसाइटी हो, चाहे कोई पर्टिकुलर कास्ट हो, कम्युनिटी हो, एटलीस्ट वी कैन नॉट फील प्राउड ऑफ दैट. राइट, प्राउड फील करने की क्या चीज़ होती है? व्हेन वी आर वर्किंग फॉर सम
वास्ट गुड, जब हम एक थोड़े बड़े स्केल पर अच्छाई के लिए, गुडनेस के लिए काम करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं. सो राइट, व्हाट ही सेइंग कि नाउ व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट द ब्लैक्स वर डूइंग, इट विल एटलीस्ट द ह्यूमैनिटी विल बी proud. They were considered as outlaws. So this was the gist of his speech, what he wanted to convey to the people. Right? उसने ये declare किया कि अब किसी को यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं. In the second part, after this questions of oral comprehension check, what he is saying, let freedom reign, God bless Africa. कि अब यहाँ पर जो है let freedom reign, let freedom reign, कि अब जहां पर खाली फ्रीडम ही फ्रीडम होगी. राइट, और सेम ब्लैक्स पर होस्ट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में कि आफ्टर हिज स्पीच, वंस ही वॉज डन विद हिज स्पीच, तो उसके बाद क्या हुआ, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्ट अवर आईज इन ऑ एज अ स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोअर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स. कि उसके बाद जब मैंने अपनी स्पीच खत्म कर दी, थोड़ी देर में उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ आंख उठा के देखा, तो वहां पर क्या था, दे लिफ्टेड देयर आईज इन ऑ, वो हैरान रह गए आसमान की तरफ देख के. वहां पर क्योंकि क्या था, स्पेक्टेकुलर एरिया ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, वहां पर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ये सब जो थे वो आसमान में घूम रहे थे. बट वो आसमान में क्यों घूम रहे थे, दे वर नॉट देयर एज अ सिंबल ऑफ द पावर, एज अ सिंबल ऑफ द मिलिट्री पावर. राइट, ये नहीं कि वो जैसे हमारे, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो क्या होता है कि 15 अगस्त 26 जनवरी के आसपास क्या होता है, पूरे हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे वो फाइटर प्लेन्स जो होते हैं वो सारे ऊपर उड़ना शुरू हो जाते हैं. किस लिए, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ कि यस वी ऑल्सो हैव दिस, वी डू ऑल्सो हैव दिस काइंड ऑफ पावर. क्योंकि हम, ये हमारी ह्यूमन नेचर है कि हम दूसरों को हमेशा बताना चाहते हैं कि हमारे पास पावर है. बट नाउ व्हाट इज ही सेइंग, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स. राइट, इट वाज नॉट ओनली अ मिलिट्री फोर्स, खाली मिलिट्री फोर्स को दिखाने के लिए नहीं ये था. राइट, ये सब जो ऊपर था उड़ रहे थे, ये इसके लिए नहीं था कि वो अपनी मिलिट्री फोर्स को बताना चाहते थे, बट इट वाज व्हाट, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, a new government that had been freely and fairly elected, freely and fairly elected. कि जो अब जो गवर्नमेंट थी, न्यू गवर्नमेंट थी, न्यू गवर्नमेंट किसकी थी, दैट वाज ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या होती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, अगर आपने अपनी सिविक्स हिस्ट्री उसमें पढ़ते हैं. राइट, सो दे वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर लॉयल्टी कि अब जो है हम इस न्यू फॉर्म, जो न्यू फ्रीली फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वी विल बी लॉयल टू, वी विल बी फेथफुल टू, वी विल बी वर्किंग फॉर दिस गवर्नमेंट, because this government was a democratic government. This was the new formed government of people, of humanity, of mankind, not only of blacks. खाली वो blacks की नहीं थी कि अब जब खाली जो black लोग हैं, काले लोग हैं, वही वहाँ पर अपना I mean they will be given any kind of rights. Everybody on the soil of South Africa, everybody on the earth of South Africa will be considered, will be respected, will enjoy his life as a respectable common man. So there will be no discrimination on any basis. Fine. Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. This word is very important. Saluted. ठीक है, वो जो बड़े बड़े जनरल्स थे, मिलिट्री ऑफिसर्स थे, ठीक है, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया. राइट, सैल्यूट किया. व्हाई, बिकॉज नाउ ही हैड बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ही हैड वन अ लॉन्ग बैटल. और उसकी लड़ाई किसके लिए थी, उसकी लड़ाई अपने लिए नहीं थी, उसकी लड़ाई इंसानियत के लिए थी, हर इंसान के लिए थी, कि हर इंसान को उस देश में हक मिले, हर इंसान को एक वहाँ के सिटीजन होने का राइट मिले. राइट, दे सैल्यूटेड मी एंड दे प्लेज्ड, और उन्होंने एक तरह से शपथ ली, उन्होंने भी ली, किस तरह की, कि नाउ वी विल बी लॉयल टू यू. राइट, वी विल बी लॉयल टू दिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अदरवाइज मिलिट्री किसके लिए काम करती है, देश के लिए तो करती है, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है, जो
जो रूल में होती है, जो वर्किंग गवर्नमेंट होती है, उसी के फेवर में काम करते हैं ना, जो वो कहेंगे वही। इस पहले क्या था, they were working under the working under the command of that white rule, that white people. Now they pledged that now we will be loyal to you. So it was something very I mean unimaginable for them. And now he's saying, and I was not unmindful of the fact that not so many years before, this word, this again is very important, I was not unmindful of the fact. कह रहा वो ठीक है, मेरे सामने वो सारे मुझे रिस्पेक्ट कर रहे थे, तालियां बज रही थी, सैल्यूट कर रहा था, ठीक है, वो अपनी सारी लॉयल्टी की मुझे एश्योरेंस दे रहे थे कि नाउ वी विल बी, बट आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। लेकिन मेरे दिमाग में से वो हिस्ट्री की, वो इतिहास की सच्चाई अभी गई नहीं थी। क्या थी कि अगर कुछ देर पहले, कुछ साल पहले अगर मैं यहाँ पर खड़ा होता है, ऐसे मेरे सामने मेरे और ब्लैक लोग खड़े जिनकी स्किन काली थी, राइट, दे वुड हैव अरेस्टेड मी। अब तक तो वो मुझे अरेस्ट कर चुके होते और जेल में डाल चुके होते। क्यों? क्योंकि दे वर नॉट इवन अलाउड टू एंटर, दे वर नॉट इवन अलाउड टू गो टू दैट प्लेस। वहाँ पर जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें, जैसे पार्लियामेंट हाउस है, वहाँ पर अगर किसी को जाने का हक ना हो, उस जगह पर, उस जहाँ पर भी बनी हुई वहाँ जाने का हक ना हो, तो ऐसी ही उनकी थी पार्लियामेंट के, जहाँ पर उनको, सो व्हाट ही से, ही वाज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि मुझे वो कॉन्टिन्यूसली मेरे दिमाग में बात थी कि अब में और उस टाइम में कितना डिफरेंस था। दिस इज द पावर ऑफ पावर, दिस इज द पावर ऑफ समथिंग व्हेन वी विन ओवर समथिंग, राइट। और पावर फिर से सेम, पावर इज नॉट ओनली टू स्नब द पीपल। पावर किसी को दबाने के लिए नहीं होती, पावर इसलिए होती है कि हम किसी और को भी एम्पावर कर सकें, किसी और को एम्पावर करना, ठीक है। पावर इज जस्ट टू एम्पावर द अदर्स, ठीक है, किसी को इतना बड़ा बना देना कि वो हमारे सामने आके अपने आप को छोटा न महसूस करे। बहुत साल पहले मैंने एक बात सुनी थी कहीं पर कि एक्चुअली में बड़ा इंसान कौन है, जिसके सामने छोटा इंसान भी आके अपने आप को बड़ा समझने लग पड़े। हमारा बड़प्पन इसमें नहीं कि हम किसी को बताएं कि नहीं तुम हमसे छोटे हो, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे वो पढ़ाई में हो या किसी और सोशल स्टेटस के, बट बड़प्पन किस में है कि कोई छोटा इंसान भी हमारे सामने ये लग रहा है कि उसको कोई फील महसूस नहीं हो रहा कि हम तुम्हारे सामने छोटे हैं। सो दिस वाज हिज हार्ट, दिस वाज हिज आइडियलिज्म एंड दिस वाज हिज माइंड फॉर द पीपल। अब वो क्या कह रहा था, he was the president of not only of blacks but of every citizen of that South Africa. Fine. The day, okay. Now he is talking of two national anthem कि अब जो है वहाँ पर दोनों नेशनल एंथम जो है गाए गए थे, बजाए गए थे। ना तो ब्लैक लोगों को उनके लिरिक्स पता था, ना हमें, ना उन लोगों को हमारे लिरिक्स, बट दे ऑल वर सिंगिंग टुगेदर। At least now the feeling of togetherness, the image of togetherness, the display of togetherness was there. And now he was sure that what he is saying, they would soon know the words by heart. कह रहे मुझे पक्का विश्वास है कि जब मैं काम करूँगा, जब हम लोग मिलकर काम करेंगे, मैं काम करूँगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेसिडेंट था तो कुछ ना कुछ तो उसके हाथ में होगा ना, वो अपने रूल्स रेगुलेशन चेंज कर पाएगा, राइट। तो लोग इन नेशनल एंथम्स को जान भी जाएंगे, याद भी कर पाएंगे, ठीक है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination. This again, this word is very important, racial domination. कह रहा मेरे बर्थ से ही पहले यहाँ के जो वाइट स्किन लोग थे, वाइट लोगों ने उन्होंने एक सिस्टम खड़ा किया था। वो क्या था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, डोमिनेशन का, ठीक है। सो व्हाट डज दिस लाइन शो कि उन्होंने अगर सिस्टम बनाए तो वो कैसा बनाया? दैट वाज बेस्ड ऑन रेसिज्म, दैट वाज बेस्ड ऑन द स्किन, कलर ऑफ द स्किन, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। अपने ही देश के लोगों के अगेंस्ट उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था which was based on racism, which was based on the color of their skin. So it is very inhuman when the humans are working against humans, right? This is the saddest part of this society, this is the saddest part of this world, when people are working against people.
जो नेचुरल हमारी जो सफरिंग्स है वो तो हैं, उस पर हमारा काबू नहीं है, बट it becomes more painful when we come to know that the people are there to torture the other people. अगर आप लोगों को पढ़ने का शौक है एक्स्ट्रा रीडिंग का, देयर इज़ अ वेरी फेमस पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ, उसमें लिखा हुआ है कि इट पेन्स माई हार्ट टू नो व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, कि मुझे ये देख के ज़्यादा तकलीफ होती है जब मैं ये देखता हूँ कि इंसान ने इंसान का क्या बना के रख दिया. So what he's saying said they erected a system of racial domination against the people of their own land, right? So it was बहुत उसके लिए दुख की बात थी कि हम जिस देश में रहते वहीं के वही लोग हमारे अगेंस्ट हैं, तो बाकियों की तो बात ही, अगर हमारी फैमिली के हमारे घर के लोग ही हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे या हम उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, तो फिर इस ह्यूमन बीइंग होने का हमारा क्या फ़ायदा? फिर तो वी आर ऑल इक्वल टू ऑल दीज एनिमल्स, इसमें तो फिर हमें अपने आप को बेटर फील करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, राइट? सो द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, राइट? कि उन्होंने कैसा, इससे पहले इतनी इनह्यूमैनिटी दुनिया में किसी ने नहीं देखी होगी जितना सिस्टम उन्होंने इनह्यूमन बनाया था. फाइन, मैं एक बार ये फिर से लाइन पढ़ रही थी, वन ऑफ द मोस्ट हार्शेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ हार्श, ठीक है? इससे ज़्यादा हार्श, इससे ज़्यादा क्रूअल सिस्टम कोई हो नहीं सकता था जो साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन लोगों ने अपने ही लोगों के अगेंस्ट, जिनकी कलर स्किन का डिफरेंट था, उनके बनाया था. This was the thing which was paining him, and this was the thing which he did not even want to forget. Why? Because now he wanted to work for humanity. Now he wanted that there should be no suppression, there should be no discrimination, there should be no racial domination. So this was his pledge, this was his kind of determination when he became the first black president. और मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, दिस चैप्टर इज़ वेरी लॉन्ग, आई डोंट वांट टू फिनिश इट इन के जल्दी जल्दी में पढ़ दूँ, इसको ख़त्म कर दूँ. So rest of the part I would be discussing in the next coming videos. So till then, bye bye. Please use dictionary to read this lesson. Keep on revising, keep on reading. This lesson is very important for us, right? As a student, as a teacher, for everyone, right? And literature is to learn for life. It is not only for again appearing in examination, but literature is to use it, to imbibe it in our life. So, right? Thank you so much. Thank you.